بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه ياسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة. سلام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان گرامی پروردگار عالم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کرنے کے لیے ہم سے کہتا ہے کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد حاصل کرو نماز و روزے کے ذریعے سے. دوسری جگہ کہتا ہے پروردگار عالم کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. عزیزان گرامی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے اسے پکارے تو صحیح. جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرے گا. وہ پروردگار عالم ہے تو لہٰذا اس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے. ابھی جو اس دعا کے ہم نے تلاوت کیا ہم سارے لوگوں نے دعائے مجیر یہ بہترین دعا ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے گا بارش کے قطرات کے برابر بھی اگر گناہ ہے پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. بارش کے قطرات تو سونے تو اس کا بھی ثواب ہے. تو انسان گرامی لہٰذا اب دیکھیں بارش جب ہوتی ہے اگر 1 منٹ وہ جو سلو والی ہوتی ہے یہ ممرہ میں اسی علاقے میں اگر 1 منٹ بارش ہو جائے تو ہم قطرات کو شمار کر سکتے ہیں. اور بارش کتنی ہوتی ہے اب یہ روایت کے اعتبار سے بارش کے قطرات کے اعتبار سے مطلب اس کا ہے کہ 1 سال میں کم سے کم جتنی بارش ہوتی ہوگی اگر جتنے قطرات زمین پہ گرتے ہیں اگر اتنے بھی ہمارے گناہ ہیں تو پروردگار اعلیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن صرف جلد کے ساتھ ہمیں حاضری دینا ہوگا. دوسرے یہ قطرات ہیں اگر درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں. کوئی انسان ایک درخت لیجیے چھوٹا سا اگر ہے اس کے پتے ہم نہیں شمار کر پائیں گے. خصوصاً کوئی نیم کے پتے کو شمار کر سکتا ہے اور جیسے اس میں املی کے پتے کو شمار کر سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے پتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برابر بھی اگر گناہ ہے وہ رحیم و کریم ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم معاف ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم معاف ہونے کے لیے تیار نہیں. کتنی منٹ لگا 7-8 منٹ لگا ہو. اتنے میں اگر ہمیں اتنی ساری چیزیں مل جائیں ایک یہ بارش کے قطرات پتوں کے اعتبار سے زمین کے اوپر جتنے بھی ذرات ہیں اگر اس کے برابر بھی گناہ رہے گا تو پروردگار اعلیٰ معاف کر دے. اگر مقروض ہیں تو قرضے کو ادا کروا دے. اگر پریشان ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر ظالم و جابر مسلط ہے تو پروردگار عالم ظالم و جابر کو ہم سے دور کر دے گا. ایسا نگرانی تو یہ وقت میں اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے 10 منٹ اپنا نہیں دے سکتے تو کہاں دیں گے. جب اتنے فائدے ہمارے لیے ہیں اور ہم نہ حاضر ہوں اور ہم نہ کریں اس کے یہاں کمی نہیں. کمی ہمارے ہیں. تو انسان کہتا ہے کہ ہمیں دیا ہی نہیں اللہ نے, ہماری سنا ہی نہیں اللہ نے, ہماری طرف دیکھا ہی نہیں اللہ نے. اللہ کے بعد پھر اہل بیت کو کوسنا چالو کر دیتے ہیں. یہ زری کے پاس گیا, وہ تابوت کے پاس گیا, وہ علم کے پاس گیا, لیکن رو رو کے گڑگڑا
गिर गया, कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। जब वो कहते तो हम उनकी करने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम कहे तो वो सुन ले, कैसे होगा? वो कहे तो हम भी तो सुने। अगर 10 बातें उन्होंने कहा है तो कम से कम 7-8 बात तो हम सुन, 2-3 बातें माइनस हो जाए, 7-8 तो हमारे यहाँ रहे कि हम इतना सुने तो। और हम 10 कहते हैं, सोचते हैं 10 के 10 पूरी हो जाए। लिख दिया हमने 15 शबे 15 शाबान को अरीसा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हवाले कर दिया। वो दें, मांग रहे हैं हम उनसे। कभी हमने सोचा वो भी तो हमसे कुछ कहते हैं, वो भी तो हमसे कुछ मांगते हैं, क्या हमने पूरा किया कि नहीं किया? जो उन्होंने कहा है हमने अदा किया कि नहीं किया? देखिए एक जुमला का मिसाल है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ से बजती। वो कहें हम करें, हम कहें वो करें, लेकिन तब भी वो कहते हैं हम उतना करते नहीं, हम जो कह देते हैं वो कर देते हैं। अगर न रहता तो ये जमीन पे हम बाकी न रहते, उनकी नजर करम न होती तो जमीन पे हम बाकी न रहते। जैसे दाना सुबह जाइए रोड पे जहाँ कबूतर जमा रहते हैं, वहाँ जब दाना फेंकते हैं तो अच्छा अच्छा वो चुग लेते और खराब छोड़ देते। रवायतें हैं कि अगर इमाम ज़मान का नजर करम हमारे ऊपर दुश्मन हमें जैसे परिंदा दानों को चुग जाता है वैसे तो यानी वो हमारे लिए करते हैं, हम नहीं करते। अल्लाह पुकार पुकार के कह रहा तुम मुझे बुलाओ मैं जवाब दूंगा, ये दुआ पढ़ दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो तुम्हारे लिए ये फायदा, लेकिन हम ये सारी चीज़ों से दूर। क्यों? हम मौला कायनात की एक वसीयत जो 2 दिन से लगातार मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारे अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं, निज़ाम नाम की चीज़ नहीं, वक्त की कीमत हमारे यहाँ नहीं है। अगर वक्त की कीमत होती तो 10 मिनट में कीमती होता हमारे लिए। 10 मिनट में हमारे यहाँ इतनी चीज़ें जब हम जमा कर सकते हैं तो 10 मिनट की वैल्यू है, कीमत है। हमने वो 10 मिनट को गवा। और देखें आज कितनी तारीख है? 23 मार्च। 23 मार्च 9:50 होने वाला, 8:70। अभी ये 8:55 हो जाएगा तो आपको अगले साल तो ये 23 तारीख आ जाएगी मार्च लेकिन 2024 नहीं 25 रहेगी। ये तारीख मिलेगी लेकिन 24 नहीं 25 मिलेगी। अभी फिर अगले साल भी या कल का दिन 8:50 हमें मिल जाएगा ये रात का, लेकिन ये जो वक्त चला गया 23 तारीख वाला वो हमें हाथ आने वाला नहीं। कोई इंसान कहते 1 मिनट जिसका चला गया पलट के वो वक्त को हासिल कर सकता है। आप रोड से जा रहे हैं 5 बजे कहीं जॉब से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, देखा कि यहाँ बेहतरीन कैलेंडर लगाए हुए हैं, वहाँ पे सेब है, यहाँ पे ये है, और बाइक से तो थोड़ा तेज में देख लिया कि अच्छा लग रहा है, आप वापस आके वो फल को ले सकते हैं, बैठ करके अपनी गाड़ी को आएंगे और लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ पीछे आके तो ले सकते हैं, लेकिन ये आप कहें कि 1 घंटा मेरा गुजर गया या 5 मिनट मेरा गुजर गया, ये 5 मिनट जो गुजर गया उसे आप हासिल नहीं कर सकते। फल तो हासिल कर सकते हैं, वक्त नहीं हासिल कर सकते। लिहाजा हमें अपना एक वक्त 1 मिनट खुसूसन ये माह मुबारक रमजान में कीमती समझना चाहिए। अगर जो दुआएं हैं, जो नमाजें हैं, जो चीज़ है, अगर हम पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। अल्लाह ने जो कहा है सलाम ने कहा है माह मुबारक रमज़ान में यालियो यासिमो वाली दुआ पढ़ो, तो उनका फायदा नहीं होगा। यालियो कहेंगे तो अल्लाह बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा था इतना बड़ा हो जाएगा, अभी अजीम नहीं था हमारे कहने से वो अजीम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर ये दुआ पढ़ेंगे तो हमारा फायदा है। 2 मिनट ज्यादा
ज़्यादा लगता है, लेकिन अफसोस वही हमारे नज़दीक वक्त की कीमत नहीं है। तो जुमला कर दूं, खाने की कीमत है, वक्त की कीमत है। वरना अल्लाह अकबर सजदगा वहाँ पे न जाता। वक्त की कीमत होती तो सजदगा यही रखे, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआएं मांगता। वो कह रहा है माह रमजान में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे मेहमान हो, जब वो मेहमान बुलाए तो भूखा रखेगा नहीं। ये चीज तो हमारा वक्त चला गया, मगरिब का जो गया तो चला गया। अब हम वो मगरिब वाली दुआ तो नहीं पढ़ पाएंगे। मगरिब की नमाज के फौरन बाद वाले जो दुआ हमें मांगना तो हम नहीं, वक्त चला गया मगरिब वाला। अब पलट के हमारी जिंदगी में वो मगरिब जो अभी हम पढ़ चुके वो नहीं आएगा। लेकिन खाना अगर कोई जैसे 6-7 बज के कुछ मिनट पे, अब घड़ी में नहीं देता जितने बजे नमाज खत्म हो गई, अगर आधा घंटा लेट इस टाइम पर अगर कोई खाना खाए तब भी खाना मिलेगा। यहाँ नहीं, घर पे मिल जाए मिलेगा ना, ये पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो दुआ वाला वक्त तो चला, वो हाथ आने वाला है। लिहाजा हमें वक्त की कीमत रहना चाहिए। कितना कीमती वक्त है। देखिए इंसान सुबह सहरी करता है, वक्त की कीमत क्या है, 1 मिनट। पता चला कि सहरी कर लिए तो जो दुआएं हैं इसी वक्त पढ़ लीजिए, दुआएं सहर, ये वक्त है उसका। अब आप नियत कर लीजिए, ये वक्त है उसका। अगर कोई खुदा न खास्ता नजीस है तो वक्त है उसका, इसी वक्त पाक हो जाए। अब आसान हो रही है, मुसल्ले पे पहुंच जाए, नमाज सुबह का वक्त हो गया है, नमाज सुबह अदा करें। हर चीज का वक्त है, ये नमाज का, रोजे का, हज के लिए जाइए, हज में भी वक्त है। ये वक्त में दोपहर से लेकर शाम तक मिना में रहिएगा, फिर रात जब हो गए तो मुजदलिफा पहुंच जाइए, फिर सुबह हो गई तो आ जाइए फिर मिना में, वहां के शैतान को पत्थर मारिए, बाल मुंडवाइए, जानवर ज़िबा करिए। हर काम के लिए ये इबादत है, लेकिन वक्त मुअय्यन है। इंसान पहले शैतान को पत्थर नहीं मार सकता कि मैं पहले शैतान को पत्थर मार लूंगा फिर जाके मिना के मैदान में जाऊंगा। नहीं, मैं तवाफ कर लूंगा फिर उसके बाद उम्रे करूंगा, नहीं हो सकता। हर चीज का एक वक्त है, अल्लाह ने वक्त रखा है ताकि हमें वक्त की कीमत पता हो। बेशक बेशक, और वो तो है ही है, अल्लाह ने रखा। और मौला कायनात ने वसीयत भी किया, अगर हम उनको मानते हैं तो उनकी माने भी। हम कहते हैं कि उनकी विलायत के कायल हैं और मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जो उनकी विलायत दिल में रखता है और मोहब्बत रखता है तो वो मोमिन है। जब हम मोमिन हैं तो उनकी वसीयत पे क्यों अमल नहीं कर रहे हैं। एक गुनहगार की वसीयत के लिए इंसान कहता है कि वसीयत पे अमल होना चाहिए, और इमाम के जुमले के ऊपर हम उनके वसीयत के ऊपर अमल ना करें, यानी हम इतने ज़्यादा कह लिया जाए सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले कितनी ज़्यादा हम नालायक इमाम के मामले या अपने ज़माने के हम नालायक बन गए कि अपने इमाम की बातों को नहीं मानने के लिए किसकी मानेंगे। में जब इनको हम मानते तो इनकी माने भी, ताकि दुनिया आज अगर हम परेशान है, कोई भी चीज़ हमारे है दुनिया परेशानी की जगह, लेकिन हम इनसे तवस्सुल करेंगे तो हर चीज़ मिल सकती। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो एक खंडहर का वहाँ एक तीर है और उसके हाथ में कमान को तीर में लगा के खींचे हुए है दीवार की तरफ मारने के लिए। तो इमाम ने कहा क्या कर रहा है। इमाम ने ये बोला तो वो तीर मार नहीं पाया।
ये वक्त उसका चला गया। तो कहता कि मौला आपने मेरा वक्त गवा दिया। कह रहे कि क्या हुआ? कह रहा कि ऐसा है कि मुझे एक नुजूमी ने बताया है कि 100 साल में एक मर्तबा ये दो सितारे जो आपस में मिलते हैं, जब ये दो सितारे आपस में मिले, अगर कोई इंसान कमान में तीर लगा के दीवार पे मारेगा तो दीवार सोने की हो जाएगी। मौला वो सितारा मिला और दूर हो गया, आपने जोड़ दिया और मार दिया, मैं मार नहीं पाया, करोड़पति अरबपति हो जाता, खत्म, फिर वही गरीब रह गया। इमाम ने कहा फिर लगा तीर अपने कमान में लगाया, करेंगे मौला, फिर वो सितारा करीब हो गया। इमाम ने फौरन कहा कि नहीं तीर मत चलाना, फिर नहीं चला पाया, ये सितारा दूर हो गया। फिर कहा कि मौला फिर आपने रोक दिया, करोड़पति बनने वाला वो 100 साल के बाद 2 मिनट में फिर मिल गया, फिर रोक दिया आपने। आप पैसे वाला बनने के लिए नहीं चाहते मैं बन जाऊँ। 2-3 मरतबा इमाम ने ये काम मुझसे करवाया, तीर लगा और मार, जैसे मारना चाहता था फौरन रोक देते थे और सितारा करीब होता था। कि जब आखिरी मरतबा इमाम ने कहा कि अब मार, जैसे ही तीर छोड़ना चाहता तो सितारा दूर ही दूर रह गया। कब मौला वो सारे जो वक्त आए थे वो चले गए, अब तो मैं नहीं बोलने वाला। बड़ा इमाम ने कहा कि ऐसा ही है, तीर चला दीवार की तरफ, सितारे को छोड़ तीर चला, जैसे ही तीर चलाया और दीवार पे लगी, दीवार सोने की हो गई। इमाम ने कहा तू समझता है कि सितारों के जरिए ये दीवार सोने की हो गई? अगर हम इशारा कर जब इमाम ने ये जुमला कहा क्या मौला तब अपने वालों को क्यों गरीब रखे हुए हैं, जब आप और खुद आप भी हैं ऐसे हालत में जिंदगी गुजार रहे और हम भी गरीब हैं। अरे ऐसे इशारा करे सबके पास सोना चांदी जमा रहे और बेहतरीन सबसे ज्यादा अभी हम रहे। इमाम ने कहा कि अच्छा ये जो सोने की दीवार हो गई तुम ले लो, लेकिन एक चीज तुम मुझे दे दो। क्या मौला बताइए, मैं क्या आपको दे दूं और ये सोना मेरा हो जाए? इमाम ने कहा तुम मेरी मोहब्बत मुझे दे दो, मैं सोना लेके चले जाओ। अब मौला ये नहीं हो सकता। कहता क्यों? कह रहा मैं गरीब हूँ। अगर कोई गरीब है तो सबसे ज्यादा तू अमीर है। मोहब्बत अहले बैत तेरे दिल, जब हमारे दिल में मोहब्बत अहले बैत है और हम ये जानते हैं कि इससे हम इतनी बड़ी है कि हम ये बेचना नहीं चाहते, तो जिससे हम मोहब्बत करते वो भी तो बड़ा है, उसके जहन से निकले हुए जुमले तो बड़े होंगे। जो इशारा करे और ये दीवार सोने की हो जाए, तो अगर हम उसकी बारगाह में हाथ फैला के उसके तवस्सुल से दुआ करेंगे तो इशारा करेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती, हमारी परेशानियां नहीं दूर हो सकती। लेकिन कोताही हमारे यहाँ, कोताहियाँ उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कोताहियाँ हर चीज़ से। हमारे यहाँ वक्त की कीमत नहीं होती, अगर वक्त की कीमत होती फिर वही जुमला कहूँ कि आप अभी गैरों की मस्जिद में चले गए, ये टाइम हो रहा है 9:30 10 10:30। हाँ, जो बिदर चीज़ है एक शैतान ने जमा कर दिया था, आज उनकी पूरी उम्मत वहाँ पे जमा है। हमारे इमाम कह रहे तुम जमा होके दुआ करो, हम मोमिन होके उनकी बात नहीं मानते। कभी सोचना चाहिए चीज पूरी नहीं होती, कभी हमसे उसे उस चीज से सबक हासिल करना चाहिए। उसने जमा कर दिया, आज तक वो जमा है। जो कि लगा देखिए मस्जिद भरी है, फटाफट आप क्लिक देखिए, वो पढ़ता अगर है ना एक आई होगी कि क्या पढ़ता वो समझ नहीं आएगा। हाँ बस उसके बाद रुकू सजदा, फिर उसके बाद खड़ा। एक जगह का भी मैं क्लिप देखा, वो जो सामने कुरान मजीद खुली वो इसे पढ़ रहा है, जहाँ रुकू आता पहले 2 कदम पीछे हटता, रुकू करता फिर सजदा करता है, फिर जब खड़ा तो 2 कदम आगे बढ़ के फिर देखिए पढ़ने लगता है। लेकिन पढ़ते हैं वो चीज तो वो पढ़ते हैं। हम अब फिर हम अपने को सोचे हम क्या करते हैं।
क्या माह मुबारक रमज़ान में उसी के लिए कहा कि तुम हाजिर हो, दुआएं करो, नमाज पढ़ो, ये करो। असल में अगर है तो हमारे लिए है। जो चीज़ है, जो नेमतें हैं, जो दुआएं हैं, हमारे लिए, उनके लिए नहीं। लेकिन वही कह दिया जाए कि कोताही हमारे, कि हमने सारी चीज़ों से। ये तो नमाज रोज़े की बात है। फिर वही कहूँ कि हमारे यहाँ अज़ादारी की भी वही हालत है। इंसान कहता है कि अरे हम तो हमारे नौजवान कम से कम अज़ादारी में पढ़ करके हिस्सा ले, क्या लेगा? कौन नौजवान पर से अज़ा पे आके बैठ जाता है? न वो मुहर्रम का महीना आने वाला है, टिकट निकाल जाए इंसान रखे हुए 4 महीने के बाद जब वतन पहुँचिएगा, और जब इधर उधर से हम अपने को भी, फिर इधर उधर सारे अहले बैत के चाहने वाले हैं, और सारे अज़ादार जो अंजुमने आई रहती है वो फर्श पे नहीं गई। क्यों? आप पूसा देने के लिए नहीं ना? क्यों? अगर फर्श पे आ जाएंगे, वहाँ जहाँ मजलिस हो रही है, जहाँ मसाइब हो रहा है, जहाँ फसाइब हो रहा है, तो माज़अल्लाह कह दिया जाए कि आज़ाब नासिल हो जाएगा। या वहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, बाहरी रहने के लिए कहा गया है, या खुदा खासा वो फर्श अज़ा जहाँ हिंदू को भी बैठने की इजाज़त है, आप नहीं बैठ रहे। तो हमारे नौजवानों ने क्या किया? अज़ादारी में क्या सीखा जाके? अगर ये फर्श पे बैठते तो खतरा आंसू मिलता, हो सकता है ये दिल पे चोट लगती, तो पता चलता कि करबला वालों के ऊपर मुसीबतें क्या है। अगर हम बाहर रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि करबला वालों के ऊपर गुजरी क्या। जब फर्श पे आए ताकि उनकी मुसीबतों को सुने और ये सोचें फिर कि आज जो दीन बाकी है तो उनकी कुर्बानियों का जब हम एक फर्श पे आएंगे। लेकिन क्या किया जाए, वहाँ पर भी कोताही हमारी, वज़ादारी में भी कोताही है। जिस वज़ादारी के लिए आज कम से कम 15-20 दिन पहले से हम तैयार हो गए, टिकट निकाल के रख के तैयार हैं, लेकिन उसमें भी कोताही। ज़रा सोचें, ये दीन, ये नमाज, ये रोज़ा, ये कुरान कैसे बात है। हम अपने 3 साल 4 साल की किसी के यहाँ बच्ची हो, कोई रोज़ा रखवा क्यों? घंटे का रोज़ा रखवाइए, रोज़ा क्या मौलाना 14 घंटे का रोज़ा? 4 साल की मेरी बेटी नहीं, भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करता, हम एक रोज़ा रखवाने के लिए तैयार हैं। उस इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन जनाब सकीना ने रवायतें कहती है, यजीद के दरबार में जब काफिला पहुंचा है, यतीमों का वास्ता अगर दिया जाता उसमें कुछ जनाब सकीना यतीमा नहीं है, ज़्यादा जुल्म उठाया गया। जब यजीद के दरबार में पहुंचा, ज़ादारों रवायतें कहती है, एक मरतबा यजीद कहता है शिम्र से, शिम्र मैंने सुना है कि हुसैन की बेटी को भी कैद करके लेके आया। सही है कहाँ? जब वो दे जो अपने पंजों के बल खड़ी है, शहजादियों को बैठने के इजाजत है, जहाँ एक रस्म 12 गले का सही का इंसान एक रस्म 12 गले, बीवियों के हाइट है, लंबाई को ज्यादा, जनाब सकीना की कम, एक रस्सी में 12 गले, जहाँ शहजादियाँ झुकना चाहती थी ताकि सकीना अपने पैरों के बल खड़ी हो जाए, उस पर ताजियाने लगाए जाते, शहजादियाँ खड़ी रहती है, सकीना पंचों के बल खड़ी हो। और ज़ादारों रवायतें कहते एक मरतबा यजीद ने कहा, जनाब सकीना करीब बुलाया, अब बुला कहा कि सकीना मैंने सुना तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत ज्यादा जनाब सकीना जवाब देना चाहती है, लेकिन जवाब नहीं। यजीद ने कहा कि
ताजियाने लेके सकीना की पुष्ट पे ताजियाने लगा। अरे दरबार में मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब नहीं देती। सिमर ने कहा मैं दोबारा सवाल कर। फिर यजीद ने सवाल किया, जनाब सकीना ने बोलना चाहा, बात नहीं। फिर यजीद ने कहा कि नहीं, अब ताजियाने लगाई जाती है। सिमर ने कहा कि आपकी मतलब तो और सवाल करें। जैसे यजीद ने कहा, सकीना मैंने सुना तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जनाब सकीना बोलना चाहा, जनाब सकीना का बात नहीं। सिमर का ताजियाना लहराया, एक मतलब सीधे सज्जाद बोल पड़े, ये यजीद को नहीं देख रहा, मेरी बहन का गले में इतनी तेजी से रस्म बंधी है, मेरी बहन बोलना चाहती है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। अज़ादानो सकीना बोलना चाहती थी लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी। यजीद ने हुक्म दिया, रस्म ढीली करवाई गई। यजीद सवाल करता है, ए सकीना तुम्हारा बाबा मुझसे मोहब्बत करता था? हाँ यजीद, मेरा बाबा मुझसे मोहब्बत करता था। ए सकीना ये बताओ, क्या तुम्हारा बाबा जब बाजार जाता था तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर लाता था कि नहीं? कहा हाँ यजीद, मेरा बाबा मेरे लिए ताज़ा खजूर लाता था। ये जुमला कह के यजीद कहता, ए सकीना क्या ताज़ा खजूर खाओगी? ये कहना था, एक दस्त आगे बढ़ाया। अज़ादारो जब दस्तरखान उसके ऊपर से खान पोश हटाया गया, सकीना ने क्या देखा? ताज़ा खजूर नहीं है, बाबा का तरह है, रफ्तार में रफ्तार है। ए बाबा, अरे मेरे रुखसार पे तमाचे लगाए गए, कानों से गोशवारे छीन लिए गए, पुष्पे ताजियाने दामन में आग लगा दी गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सकीना की मज़लूमियत का वास्ता, जनाब सकीना की यकीनी का वास्ता, उनके रुखसार पे लगे हुए तमाचों का वास्ता, नीर का वास्ता, कानों से बहे हुए लहू का वास्ता, परवरदिगार हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमा, हमारे वाले गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमा, हमारे मरहूम गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमा, जबारे इल्म में जगह न फरमा, कब्र पर सीधे मुनव्वर दर फरमा, जनाब सकीना सलाम अलैह के जरिए अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा, महशर के मैदान में शफ़ाअत नसीब फरमा, परवरदिगार जो परेशानियों को दूर फरमा, जो ज़ालत से मुशर्रफ फरमा, जो रोज़गार का फरमा, जो वैसे रोज़ तरक्की अता फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम को सरासे खुशनूद फरमा, इमाम पे ज़ोरत आजील फरमा, उनके आवाज़ साहब शुमार फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप दर्शक बतौर सूरह हम की बतौर सूरह अल्लाह फरमाते मौलाना तंबिया अब्बास इब्न शाफी सलाम शाकिर साहब से मैंने पास इब्न शहबाज हुसैन और जुमला मुन्ना मौजूद हाज़िर के बारे साहब Bismillahirrahmanirrahim.